میرا بھانجا بہت خوبصورت تھا، اس کے نین نقش بہت خوبصورت، وہ لڑکا لگتا ہی نہیں تھا، اس کے چہرے پر لڑکیوں جیسی معصومیت تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی لڑکیوں جیسے نازک تھے۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ لڑکا ہے۔ اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو کوئی بھی اسے لڑکا نہیں مان۔ میری بہن نے بھانجے کو میرے پاس بھیج دیا تھا، اور ایسا کیوں ہوا تھا یہ میں نہیں جانتا۔ آج سے 16 سال پہلے میری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ کہاں گئی کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، اور پھر اچانک 16 سالوں بعد میرے پاس ایک لڑکا آیا جس کے پاس ایک خط تھا، اور وہ لڑکا کوئی غیر نہیں میرا بھانجا تھا جسے بہن نے میرے پاس بھیج دیا تھا اور خط میں اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ بہن گھر سے کیوں بھاگی تھی اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ غربت نے بہن کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا کیونکہ میرا باپ پیسوں کی لالچ میں اس کی شادی ایک بڈھے سے کروانا چاہتا تھا۔ بہن کسی اور کو پسند کرتی، وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گھر بتایا لیکن اماں ابا نہیں مان۔ ابا نے بہن کو مارا پیٹا اور اسے گھر میں بند کر دیا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، بہن روتی تڑپتی اور میری منتیں کرتی کہ میں اسے جانے دوں، اس کی رسیاں کھول دوں، کیونکہ ابا نے بہن کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی اور زخموں کی وجہ سے اس کا منہ سوجا ہوا تھا، اس کا ہونٹ ایک جانب سے پھٹا ہوا تھا۔ مجھے بہن کی حالت دیکھ کر بہت ترس آنے لگا تھا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی اور بہن 16 سال کی تھی۔ اس نے روتے روتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے جانے دو، میں ماں بننے والی ہوں، میں نکاح کر چکی ہوں، میں کسی کی بیوی ہوں، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ بہن اس وقت کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مجھے بہن کی باتیں زیادہ سمجھ نہیں آئیں، ویسے بھی میں بچی تھی، میرا ذہن ان باتوں کو سمجھتا نہیں تھا، پر میں بہن کے چہرے پر پھیلی وحشت مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر اس رات اماں ابا کے سونے کے بعد میں نے چپکے سے بہن کی رسیاں کاٹ، وہ مجھ سے لپٹ گئی اور میرا منہ چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میں نے بہن کو پانی پلایا اور پھر پانی پینے کے بعد وہ اپنے زخموں سے بھرے جسم کو گھسیٹ کر لنگڑاتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ سردی کے ان یخ بستہ راتوں میں ایک چادر لپیٹے وہ کہاں گئی میں نہیں جانتی۔ میں جانتی تھی صبح جب ابا کو پتہ چلے گا تو قیامت آ جائے گی، پر میں خوش تھی کہ بہن کو اس جیل سے رہائی مل گئی تھی۔ اگلی صبح جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ ابا نے اٹھتے ہی جب بہن کی کھلی رسیوں کو دیکھا تو اماں اور مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اسے شک تھا کہ اماں یا میرے علاوہ بہن کو اور کوئی رہا نہیں کرا سکتا۔ ویسے تو ابا بڈھا اور نشئی تھا، لیکن اماں اور مجھے مارتے وقت اس میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی۔ مجھے پہلی بار اتنی مار پڑی، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو بہن کی تکلیف کا احساس ہوا کہ کیسے وہ ابا سے مار کھاتی تھی، اور یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ ابا ہمارا سگا نہیں بلکہ سوتیلا باپ، اور تبھی مجھے اس بڈھے وجود سے نفرت ہو گئی۔ اور پھر 2 سال بعد جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے میرا سودا کرنا چاہا۔ اماں نے منع کیا تو ابا نے دونوں کو مارا۔ مجھے چھڑانے کے چکر میں اماں نے ابا کو زوردار دھکا دیا اور وہ دور جا گرا، اور نہ جانے اماں میں اتنی جان کہاں سے آئی۔ شاید میری وجہ سے ماں نے مجھے بچانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا تھا۔ ابا وہیں زمین پر گرا اور دم توڑ۔ اس کے بعد کی زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ اماں کو پولیس نے ابا کے قتل کے جرم میں پکڑ لیا۔ میں نے لاکھ دہائیاں دی پر میری کسی نے سنی ہی نہیں۔ اماں کو 7 سال کی سزا ہو گئی اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا پیٹ پالنے لگی، اور ایسے ہی ایک دن ایک امیر گھر کے لڑکے کا مجھ پر دل آ گیا۔ یہ بھی میری کمبخت۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی ان کا بڑا بیٹا باہر سے پڑھ لکھ کر آیا تھا۔ مجھے وہ شروع دن سے ہی نہیں پسند تھا۔ اس نے ایک دن مجھے کام کرتے دیکھا اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور پھر روز ایسا ہونے لگا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا کہ مجھے لگتا کہ اس کی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو جائیں۔ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لڑکا تھا، لیکن وہ جس ماحول میں رہ کر آیا تھا اسے لگتا تھا کہ یہاں بھی لڑکیاں خود ہی بک جاتی، پر وہ شاید نہیں جانتا تھا کہ میں نے کتنا مشکل وقت گزارا تھا۔ میں تو روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے ترسی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کن تکلیفوں میں دیکھا تھا، میں نے اپنی ماں کو کیسے رسوا ہوتے ہوئے دیکھا تھا، یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں کا سر نیچا ہو، حالانکہ وہ جیل میں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے وجود کو سنبھال کر رکھا ہوا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ گھر کا کام کرنے کے بعد میں اپنے ہاسٹل جانے کے لیے گھر سے نکلی، اور اسی وقت وہ لڑکا گھر میں داخل ہوا۔ میں لڑکیوں کے ایک سستے ہاسٹل میں رہتی تھی کیونکہ میں اکیلی کرائے کے مکان میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاسٹل میں اور بھی لڑکیاں تھیں جو جاب کرتی تھیں، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کسی کے گھر میں صفائی کرتی تھی۔ میری مالکن اچھی عورت تھی، لیکن اس کے بیٹے کی حرکتوں سے میں تنگ آ گئی، اور اس وقت بھی اس نے طوفانی بارش میں میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہاں جا رہی ہو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میں ڈر کر پیچھے ہوئی۔ میری طبیعت اس دن ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی، میں جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی، اور اب اس کے راستہ روکنے پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں خود ہی چلی جاؤں۔ میں سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو وہ فوراً میرے سامنے آیا اور میری جانب بڑھا۔ اس کے منہ سے نہ جانے کس چیز کی بدبو آ رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، اس طوفانی
सुहानी रात में मेरे पास ठहर जाओ। तुम नहीं जानती पर मैंने तुम्हारे जैसी खालिस लड़की आज तक नहीं देखी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा गाल छुआ, मेरे जिस्म का खून जैसे मुंजमद हो गया। जाले में कितनी ही देर ऐसे खड़ी रही, फिर मुझे जैसे एक झटका लगा। मेरा हाथ उठा और पूरी ताकत से उसके मुंह पर निशान छोड़ गया। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि एक नाजुक सी लड़की इस कदर जोरदार थप्पड़ मारने की जुर्रत भी कर सकती है। उसका नशा हरन हो चुका था और हैरानी से मुझे देखने लगा। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, मैं रोते हुए चिल्लाई और उसे बारिश में भीगता छोड़कर भाग आई। अगले 2 दिन मैं काम पर नहीं जा सकी। मुझे ठंड लग गई थी और तेज बुखार। मैं खौफजदा भी हो गई थी। बड़ी मुश्किलों से मुझे ऐसा घर मिला था जिस घर के मर्द मुझे बुरी नजरों से नहीं देखते थे, और अब जाने कहां से ये इंसान मेरी जिंदगी खराब करने आ गया था। मैं उन 2 दिनों में कितनी बार सोचा कि ये काम छोड़ देती हूँ, कहीं और पता कर, पर इतनी जल्दी इतने अच्छे पैसों वाला काम मिलना मुश्किल था, और फिर मजबूरी में ही सही मुझे वहीं जाना पड़ा। मेरा दिल बहुत डर रहा था, पर मैं जब वहां गई तो अजीब ही मुअम्मा था। मालकन के बड़े बेटे ने नजर उठाकर भी मुझे नहीं देखा। उसकी नजरें झुकी रहीं। वो मुझे ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। उसने मालकन को भी कुछ नहीं बताया था। मैंने शुक्र का सांस लिया, लेकिन इसके बाद मेरा मजीद इम्तिहान शुरू हुआ। कुछ दिनों के बाद ही मालकन ने जलील करके मुझे घर से निकाल दिया। उसका कहना था कि मैं उसके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही, क्योंकि उसका बेटा मुझसे शादी की जिद पकड़ कर बैठ गया था। मैं तो साकित रह गई कि मुझसे थप्पड़ खाने के बाद वो लड़का मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। मैं चुपचाप वो काम और घर छोड़कर आई, लेकिन उस लड़के ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जहाँ जाती वो मेरे पीछे हो। एक दिन मैंने थक हार कर पूछ ही लिया। तब उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब आप किसी के घर में नौकरानी की तरह काम करें। ये कहते हुए उसकी आंखें और सर झुका हुआ। वो पहले वाला लड़का नहीं था, बल्कि बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहा। मुझे हैरत भी हुई, पर मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहती थी जो आंखें जख्मी कर। मैं उससे ये कहकर आगे बढ़ गई कि मेरा पीछा छोड़ दो, हमारा कोई जोड़ नहीं। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो साए की तरह मेरे साथ होता। उसके मना करने के बावजूद भी मैंने काम शुरू कर दिया। मेरी नई मालकन एक बूढ़ी औरत और वो अपने शौहर के साथ रहती थी। दोनों अकेले रहते थे। मैंने सोच लिया था मैं दोनों की खिदमत करूंगी। मेरे काम करने पर वो लड़का बहुत जलता था। उसके मना करने पर भी मैंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि मालकन का बूढ़ा शौहर मुझ पर बुरी नजर रखे हुए। पर मैं काम नहीं छोड़ सकती थी। मुझे अपने पेट की दोज़ख को भी तो भरना था, और मैं गलत काम करना नहीं चाहती थी। मैं हलाल खाना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन शदीद बारिश में जब मालकन दवा लेकर सो रही थी, मालकन के शौहर ने मुझसे बदतमीजी की। इससे पहले कि कुछ गलत होता, वहाँ वही लड़का आ गया जो मेरा साया बना हुआ था। उस रोज उसने मुझे बताया वो बूढ़े मालिक को जान से मार देता, पर मैंने उसे रोका। उस रोज में उसकी आंखों में अजीब सा जुनून देखा था, जैसे वो कुछ कर गुजरे, और यही वो लम्हा था जब मुझ पर उसकी मोहब्बत का इदराक हुआ। और फिर न चाहते हुए मैं खुद को रोक ना पाई। मैं भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, और फिर उसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मुझसे निकाह करके वो एक छोटे से घर में रहने लगा और खुद कमाने लगा। वो मुझ पर किसी की बुरी नजर भी नहीं पड़ने देता। उसकी मोहब्बत और चाहत पाकर मैं सब कुछ भूल गई थी। वो मुझे महारानियों की तरह रखता था, और उसे मेरी पाकीज़गी पसंद आ गई। उसका कहना था वो सारी उम्र बाहर रहा था, पर उसे आज तक ऐसी पाक दामन लड़की नहीं मिली थी जिसे किसी ने ना छुआ। उसने मुझे भी ऐसी ही लड़की समझा था, पर जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो वो जान गया कि मैं क्या। तभी उसने मुझे इज्जत से बीवी बनाकर घर रखा हुआ। मेरी जिंदगी अभी थोड़ी नॉर्मल और पुरसुकून हुई ही थी कि अचानक फिर से जिंदगी में हलचल मच गई। जब एक रोज दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने खड़े कम उम्र लड़के को देखकर मैं हैरान हुई। उसने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया और कहा कि अभी लिफाफा खोल कर देखो। जब मैंने लिफाफा खोल कर देखा तो अंदर से खत निकला जो मेरे नाम का था, और भेजने वाली मेरी बहन, जिस पर लिखा था कि मेरे बच्चे की हिफाजत करना। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो खत मेरी बहन ने भेजा था, पर जब सामने खड़े दुबले पतले लड़के को गौर से देखा तो मुझे उसमें अपनी बहन की झलक नजर आई। वो डरा सहमा खड़ा था। मैं उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई, उसे कमरे में बिठाया और शौहर का इंतजार करने लगी। जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ना तो मैं भांजे को वापस भेज सकती थी और ना उसे घर में रख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि शौहर को बहन के बारे में पता चले और वो कुछ गलत सोचे। मैंने कमरे में आकर भांजे से बहन का पूछा कि मेरी बहन कहाँ, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखों से पट पट आंसू बहने लगे। मेरे लिए ये अजीब सूरत हाल। मैंने उसे चुप करवा दी। शाम को जब शौहर घर आया तो उसे सब कुछ बता दिया। मैं डर रही थी कि जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा, पर उसने मेरा हाथ थाम कर कहा कि कुछ नहीं होता, तुम्हारी बहन को हम ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत हो, और तुम्हारा भांजा मेरा भी भांजा है, उसे यहीं रहने दो। शौहर के मुंह से ये बातें सुनकर मेरे जलते वजूद को सुकून मिल गया और मैं पुरसुकून हो गई। भांजा हमारे साथ ही रहने लगा। वो बाकी लड़कों जैसा नहीं था, बल्कि डरा सहमा ही रहता था। ज्यादातर अपने कमरे में रहता था, और अगर मैं उसे बाहर कोई सामान लेने को भेजती तो उसकी जान पर बना। वो यूं थर थर कांपने लगता जैसे कुछ हो जाएगा। एक दिन मैंने उसे बाहर सौदा सिल्फ लाने भेजा। जब वो घर आया तो उसकी
उसकी हालत बुरी हो चुकी थी और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, यूं जैसे वो किसी से डर कर भागा हो। मैंने उससे पूछने की कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया और सीधा अपने कमरे में चला गया। भांजा हमसे घुल मिल गया था पर वो अब भी बाहर जाने से डरता था, किसी अनजान सी बात भी नहीं करता था। मुझे हैरानी थी कि इस उम्र में भी उसे मोबाइल और बाकी चीजों का शौक नहीं था। वक्त तेजी से गुजरने लगा। भांजे को यहाँ आए 2 माह होने वाले थे। शौहर के दोस्त की शादी थी, मुझे शॉपिंग करने जाना था। आजकल मुझे चूड़ीदार पाजामे का बहुत शौक हो रहा था। शौहर ने मुझे कहा कि दिन में भांजे को लेकर बाजार चली जाना और जाकर कपड़े ले आना। मैं भांजे को लेकर बाजार आ गई। मैंने घूम फिर कर अपनी मनपसंद जोड़ा लिया। पीले रंग का चूड़ीदार पजामा और कलियों वाली फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने तसल्ली से खरीदारी की थी, जबकि भांजा अजीब उलझन का शिकार था। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था और उसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। मैं कपड़े लेकर वापस घर आ गई। घर आते ही भांजे की सांस बहाल हुई और कहने लगा, खाला ये चूड़ीदार पजामा पहनकर तो देखो, पूरा भी आता है या नहीं। मैं खुशी खुशी नया सूट पहनने चली गई, पर जब वापस आई तो मेरी खौफ से चीख निकल। सामने ही सहन में 10-12 आदमी खड़े थे और वो सिर्फ आदमी नहीं बल्कि गुंडे लग रहे थे। इनमें से एक ने मेरे भांजे को गर्दन से दबोच रखा था। तुम्हें क्या लगता था लड़के का रूप लेकर तुम हमसे बच जाओगी? उसने भांजे को बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और फिर हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से नकली दाढ़ी उतार फेंकी। मैं तो हैरत के मारे कुछ बोल ही ना पाई। दरअसल वो भांजा नहीं बल्कि भांजी थी। अब मुझे समझ आया था कि वो अकेली बाहर क्यों नहीं जाती थी और डरी सहमी क्यों रहती थी। वो बिल्कुल मेरी बहन की फोटो कॉपी थी। वो लोग उसे लेकर जा रहे थे। वो चीख रही थी और मुझे मदद के लिए बुला रही थी, पर इससे पहले कि मैं उसे रोक पाती, अभी मैं उसकी जाने बढ़ी ही थी कि मुझे अपने पेट में गर्म सलाख घुसती हुई महसूस हुई और फिर साथ ही पुलिस के सायरन की आवाज उभरने लगी। दरअसल बहन ने जिस लड़के के साथ निकाह किया था, उसने बहन के साथ धोखा करके उसे बेच दिया था। बहन की एक बेटी हुई जिसे बहन ने संभाल कर रखा था। जब उन लोगों को पता चला तो वो भांजी को ढूंढने निकल पड़े। इससे पहले ही बहन ने मेरा पता निकलवा कर अपनी बेटी को बेटे का रूप देकर उसे मेरे पास भेज दिया। उन जालिम लोगों ने मेरी बहन को मार डाला था और अब भांजी तक भी पहुंच गए थे। मैं एक बार अपनी बहन को खो चुकी थी, दोबारा नहीं खोना चाहती थी। मैं उसे बचाना चाहती थी, पर उन लोगों ने मुझे ही गोली मारकर रास्ते से हटा दिया। मुझे लगा था मैं मर चुकी हूँ, पर जब आंखें खोली तो पहला चेहरा भांजी का सामने आया। वो बहुत मासूम सी बच्ची थी। मैं उसे किसी गैर लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकती थी। मैंने शौहर से भांजी का पूछा और हिचकियों से रोने लगी। शौहर ने मुझे चुप करवाया और फिर भांजी अंदर आई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने शौहर की जानिब देखा। उसने बताया कि मैं पहले दिन ही जान गया था कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है और मैंने सब पता लगवा लिया था। पर मुझे माफ कर दो कि आज मैं लेट हो गया। मेरी वजह से तुम्हें गोली लगी। वो भी रोने लगा था। वो जालिम लोग पकड़े गए थे। भांजी और शौहर दोनों मेरे सामने थे। मुझे और क्या चाहिए था, पर किस्मत उस दिन मुझ पर मेहरबान। मेरी सास और ससुर भी मान गए और मुझसे मिलने आ चुके थे। सास हमें लेकर अपने पुराने घर आ गई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक लंबा सफर तय करने के बाद बिलाखिर मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई थी। 3 हफ्ते में अस्पताल में रही और फिर मुकम्मल सेहतयाब हो गई। तंदुरुस्त होते ही सबसे पहले मैंने भांजी के लिए अच्छा सा लड़का तलाश कर लिया और फिर भांजी की शादी पर अपना पीला चूड़ीदार पजामा और कलियों वाला फ्रॉक पहनकर खूब ढोलक बजाई और अपने दिल के अरमान भी पूरे किए। वो सब कुछ जो बचपन में ख्वाहिश थी, वो किसी न किसी तरह आज सब पूरी हो गई। बहन तो न सही, पर बहन की बेटी का घर बसाकर मैं आज मुतमईन हो गई। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया।